Hello students, welcome back. In the previous class we learned about seed dispersal और हमने ये देखा कि क्यों seed dispersal जरूरी है, क्यों उसका seed dispersal होना, रीजन क्या क्या है और क्यों जरूरी है। अभी हम जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि seed dispersal wind से होते हैं, water से होते हैं, animals और scattered by explosion। अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे और कैसे सीड डिस्पर्सल प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड। हवा के कारण, हवा से जो सीड डिस्पर्सल होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, द साइज ऑफ सीड्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन देयर डिस्पर्सल। अब सीड की डिस्पर्सल के लिए उसके साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विंड में विंड डिस्पर्सल, तो लेट्स सी क्या क्या फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑफ सीड्स, विंड डिस्पर्सल में जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं उसकी फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला तो क्या है, size of the seed। Size of the seed, it should be small to be carried by the wind। Come back, let's see here। Seeds dispersed by wind must be light and small in order to be carried by the wind to greater distances। देखा यहाँ पे small size में होना चाहिए and light, small and light weighted। स्मॉल होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, दे मे हैव हेयर्स और विंग्स टू हेल्प देम बी कैरिड अवे बाय द विंड। क्या क्या होना चाहिए उसमें, हेयर्स रहते हैं, हेयर्स या फिर विंग्स देखे होंगे आपने। Look at here, hiptage seed। Did you see this hiptage seed? देखो यहाँ पे hiptage seeds। इसमें देखो wings जैसे उसकी shape है। या फिर madder seed देखो यहाँ पे, they have hairy like structures। उनके अंदर hair जैसे structure होते हैं जो हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह पे जाके गिरते हैं। Come on, moving forward, the seed of hiptage, dandelion, madder and cotton have टफ्स ऑफ हेयर। ये जो सीड्स हैं, अब हेयर के बारे में, हेयर एंड विंग्स के बारे में बात की अपन ने, तो देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। सी कौन से थे, द सीड्स ऑफ हिप्टेज, हिप्टेज, देन डैंडलियन, मैदर, then cotton seed। See, these are the examples of seeds which are carried through wind: hiptage, dandelion, madder and cotton seeds। Moving forward, sycamore seeds are winged। Look at this, this is called sycamore seeds। They have wings। Did you see this? They have wing-like structure which help them to spin। They spin through the air like mini helicopters। See, look at this, sycamore seeds। What is the specialty of that? They have, see, they have winged structure, wing structure, so that they spin and move to different places। So we learned about wind dispersal, factors of seeds, size of the seed, what size of the seed में क्या क्या देखा आपने, स्मॉल होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए,
देन हेयर होते हैं उसके, या फिर विंग शेप होते हैं। हेयर्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हिप्टेज, डैंडेलियन, मैदर, कॉटन सीड्स। अब जो विंग शेप में है सिकेमोर, सिकेमोर सीड्स में क्या होता है कि उसके एक विंग शेप होते हैं, विंग स्ट्रक्चर, उससे क्या होता है वो स्पिन करते हैं एंड इट गो एंड फॉल टू डिफरेंट places and then they germinate over there. Moving forward, dispersal of seeds by water. Now, dispersal by water. अब पानी से जो सीड डिस्पर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अब। The seeds of plants which grow in river, ocean and ponds or near water bodies are dispersed by water. देखो जो प्लांट कहाँ पे, रिवर्स के साइड में, the plants grow near रिवर हो गया, ओशियंस हो गया, पॉन्ड्स हो गया। क्या होगा इनके जो सीड हैं, when that fall into this river, the seeds when fall into this river, ocean and ponds, what happens, they get carried by the water. The fruits of such plants have special structure which help them float to far off places, carrying seeds in them. उनकी जो fruits हैं, when the fruits, what happens, the fruits fall into water, they fall into water, but क्या होता है, they have special structure, they have, now I will note down the features. स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, they will be so that they float. What is the meaning of float? देखो, न्यू वर्ड फॉर यू, फ्लोट। फ्लोट क्या मतलब, फ्लोट मतलब तैरना। See, it's a new word for you, float. Float means क्या है, in the language of normal English में बोल देता हूँ कि swim करना, तैर के चले जाना, ठीक है, float. Write down this word and you can learn this. Okay, float मतलब तैरना। आगे चलते हैं। For example, the lotus fruit has a spongy part which help in float. Example क्या है, lotus, lotus fruit. lotus fruit में क्या होता है, एक स्पॉन्जी पार्ट होता है, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज देखा आप लोगों ने, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज मीन्स इट्स अ मटेरियल जो अपन कुशन में यूज करते हैं। तो लोटस के फ्रूट में क्या होता है कि उसकी जो फ्रूट है वो भी स्पॉन्ज जैसे रहते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आई विल शो यू द एग्जांपल्स ऑफ लोटस सीड। लुक चिल्ड्रन, दिस इज द फ्रूट ऑफ अ लोटस, दिस इज द फ्रूट ऑफ अ लोटस प्लांट। See, spongy lotus fruit with seeds. See, in the outer section we have the spongy part. See, sponge. We have a sponge type portion, and the inside we have its seeds. Have you seen this? Outer we have spongy part, and the inside we have the seeds. So they float around. They float in water. पानी में तैर के दूसरे जगह जाके फिर वहां पे जर्मिनेट होते हैं। Now the second one is a coconut. Coconut. Coconut भी ऐसी है। See, it also fall down in the water. It floats and reaches different places and then germinates there. Okay, moving forward. Have you ever seen a coconut? It is hollow on the inside and has fibrous covering on the outside. नारियल देखे होंगे आपने, अंदर
उसके अंदर पानी रहते हैं, तो क्या होता है कि वो बाहर स्पॉन्जी, बाहर उसके फाइबर्स रहते हैं, तो ये जो फाइबर्स के कारण क्या वो डूबते नहीं है और पानी में तैरते हैं। दिस मेक्स इट लाइट एंड हेंस इट कैन बी कैरिड बाय फ्लोइंग वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो क्या होता है, इससे वो बहुत दूर तक तैरते हैं और वहां जाके फिर वहां से कहीं पे जाके अटक जाते हैं और वहां पे फिर वो जर्मिनेट करते हैं। तो इसी तरीके से होते हैं पानी में, जो पानी से जो डिस्पर्स होने वाले सीड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं। समराइज करते हैं अभी तक आपने जो सीखा है। सीड डिस्पर्सल सीखा हमने, वी लर्नड अबाउट सीड डिस्पर्सल। इसमें डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड देखा हमने। उसकी कुछ फीचर्स हैं, सीड्स के साइज छोटे होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, हेयरी स्ट्रक्चर रहते हैं, विंग्स रहते हैं उनके अंदर। एग्जाम्पल्स हिप्टेज हो गया, डैंडेलियन हो गया, मैदर, कॉटन सीड्स। देन उसके बाद हमने डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर देखा हमने यहाँ पे, ठीक है। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर में क्या था, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर में हमने देखा द प्लांट्स दैट ग्रो नियर रिवर, रिवर के पास, ओशन के पास या पॉन्ड के पास जो प्लांट रहते हैं उनके फ्रूट पानी में गिरते हैं, क्या होता है, फॉल डाउन इनटू वाटर। फिर क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर स्पेशल रहते हैं, दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर सो दैट दे कैन फ्लोट। ये जो नया वर्ड है आपने सीखा है, फ्लोट, FLOAT, मतलब तैरना, स्विम। एग्जाम्पल हमने लोटस फ्रूट देखा। लोटस फ्रूट में हमने देखा है कि उसके स्ट्रक्चर देखो, इट्स ए स्पॉन्जी पार्ट होते हैं, दे हैव अ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर और उसके अंदर सीड रहते हैं। देन वी हैव लर्नड अबाउट कोकोनट। कोकोनट के भी बाहर फाइबरस कवरिंग रहते हैं और अंदर खोखला रहता है, इट्स होलो, होलो मीन्स खोखला। देयर इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, HOLLOW, होलो। होलो मीन्स अंदर से खाली, होलो अंदर से, मतलब जैसे नारियल देखा ना आपने, अंदर पानी रहता है उसके अंदर, होलो, राइट। सो दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, लर्न दिस। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स अभी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है। कुछ चेंजेस करना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको कुछ समझना हो तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियोस बार बार देखो और समझने की कोशिश करो, कुछ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे।